मेरा नाम हरप्रीत है। मैं कम्युनिटी अभिनव के साथ रन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारी एक फिनटेक कंपनी भी है जो IIM के साथ इंक्यूबेटेड है, F2 फिनटेक, जिसमें हम लोग हर तरीके का लोन कस्टमर को दिलवाने की हेल्प करते हैं, चाहे कि वो सैलरी के लिए पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, व्हीकल के अगेंस्ट लोन हो, कोई सप्लाई चेन की फाइनेंसिंग हो, कोई कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो। तो जिस तरीके की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, इंडिया में 10,000 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो पैसा देते हैं। हम ये बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से उन 10,000 में से कौन कौन सा प्लेयर है जो आपको पैसा दे देगा, ताकि आप अपनी फाइल रिजेक्ट ना करवाएं, सिविल खराब ना करवाएं, अननेसेसरी इंक्वायरी ना बढ़ाएं। तो उस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बनते हैं कस्टमर्स के और उन लोगों को लोन दिलवाने में हेल्प करते हैं। Mayank Mittal, I'm a product of IIM Lucknow itself. So I passed out in 11 and last 13 years I've been into the corporate setup. So I've worked for Amazon, P&G. Then lastly I was within an NBFC, Indifi. I used to head the business for them. Recently I have finished my law also. So I've just opened a legal tech firm known as Advocate Assist. So it's into the legal advisory space by AI. So I'm still trying to figure out things. It's been only last 8 months that I have into being this journey. Plus I have a legal firm of my own that majorly deals in the corporate and the civil law. Yeah. मैं संदीप कुमार, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है मैंने, स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन मेरी वेबसाइट पे जाके आप कहीं का भी एट प्रेजेंट फुल ट्रक किसी भी रेंज में, कोई भी फुल ट्रक किसी भी टाइप का 40 फुटा 50 फुटा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्रक बुक कर सकते हैं फॉर ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम दिल्ली NCR। और पार्ट लोड भी ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर इंडिया करते हैं। पार्ट लोड में आ गया 1 कार्टन 10 कार्टन कहीं से गई। पैन इंडिया पिकअप है, पैन इंडिया डिलीवरी। Hi everyone, Saurav this side. I'm the founder and CTO of Squabi Technologies. I'm doing this from 2016 onward. Started as freelancer. Onward I founded this company. I'm generally doing web development, app development, ERP etc. So अभी तक IT में हम यही कर रहे हैं। हमारे कुछ इंटरनल प्रोडक्ट भी चलते हैं, बट या दैट इज ऑल आवर ऑन स्टेल्थ मोड या फिर इंटरनली टेस्टिंग चल रही है उनकी। फुली फ्लेज्ड हमने कभी रिलीज नहीं करे हैं उनको। So that's all about me. So this is Shubham Mishra and we are into IT services and product development. So we are generally making product for all the CMS like a Drupal and WordPress if you heard about it. And we are also working with one stealth mode startup from Bangalore. So yeah, we are doing like this. And we are also helping other business to their digital transformation. Like he said website development and mobile app development. So, Hi, my name is Sanawaz Rao. I am the founder of Next Mile Mobility and we are incubated at IIM Lucknow. And we are building sustainable mobility and battery swapping system for 2-wheeler, 3-wheeler and e-rickshaw. Hello everyone, Shubham Verma from Boxem Technologies Private Limited. I am running my IT consulting firm last 8 years and we are providing all the services, 360 services we have provided. Hi, good evening everyone. I am Arun. I am the founder and the director of Acquire Modular Private Limited. We are nothing to do with the digital as of now. So we are just calculating unorganized format of the modular furniture manufacturing to the very organized format where we are trying to use VR and other things, and we are providing this furniture to all kind of industry like or education, hospital, hotels, or all the co-workings, and we are supplying the very famous startup things, Zomato, and they are very like our product. And are based out at Greater Noida, and my journey starts when I completed almost 15 years in the automotive. The last assignment was the zonal head for the Hyundai Motors India. Was that in 2022 only, post COVID, this business has started. Thank you very much. Hi everyone, this is Subhas. I have an industrial IoT company. We are building hardware products, devices, smart devices, industrial devices. मेरे बिजनेस की कौन सी वो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो शायद मैं एज अ फाउंडर मेरे को टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, मेरे को थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर मैं किसी के सपोर्ट से वो चीज सॉल्व करना चाहूँ तो जल्दी हो सकती है। मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम मेरे बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, मुझे हामी तो भरनी पड़ेगी, नहीं तो अगर हामी नहीं भरूंगा तो उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि हाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है मेरे बिजनेस की। तो आप सारे लोगों को अपने अपने बिजनेस की आइडेंटिफाई करनी है वो 3 दिक्कतें जो किसी एक अच्छी सपोर्ट से, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एक गवर्नमेंट सपोर्ट या एक इन्वेस्टर सपोर्ट से वो पूरी हो सकती है। कि हमें अपने ही बिजनेस को एनालाइज करके, चाहे वो आज 1 महीने पुराना बिजनेस है,
चाहे मुझे उसके लिए पैम्पलेट बनाना है और व्हाट्सएप पे एक मार्केटिंग शुरू करनी है बेसिक लेवल की, और मैं ही फाउंडर हूं इकलौते टीम में, तो मेरी स्टेज ये हो सकती है अर्ली स्टेज। मैं थोड़ा सा ट्रैक्शन बनाना शुरू करूंगी, मेरे पास 40-50 कस्टमर्स हो गए हैं, 100 कस्टमर्स हो गए, थोड़ा सा रेवेन्यू आना शुरू हो गया, ये भी मेरी स्टेज हो सकती है। एक अच्छी स्टेज भी हो सकती है कि हाँ मैं 50, 100, 200 एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा हूं, मेरा एक बढ़िया रेवेन्यू आ रहा है, अब मुझे स्केल करने के लिए ये चीज जरूरत है। तो हर एक स्टेज पे रिक्वायरमेंट अलग होगी, प्रॉब्लम अलग होगी। तो जो हम लोग इस नेक्सस फाउंडर से आप कम लोगों को बुलाने का हम लोग का उद्देश्य एक ही है कि आप सबकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, या वो हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से सॉल्व कर पाए, या गवर्नमेंट सपोर्ट से सॉल्व कर पाए, या कम्युनिटी सपोर्ट से सॉल्व कर पाए। ये हो सकता है, सर का ट्रक का बिजनेस है, मेरे साल में 4 कंसाइनमेंट जाते हैं, या मेरे कस्टमर्स के 4 कंसाइनमेंट जाते हैं, जिससे उनका बिजनेस प्रपोर्ट हो सकता है, राइट? हो सकता है इनकी आईटी की कंपनी है, ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनका टेक पे पैसा खर्च कर ही रहे हैं, मगर अब मेरे कम्युनिटी का मेंबर आता है और वो चीज को बताते हैं, सर ये 4 चीजें मुझसे पूछिएगा बस। तो जब आप एज अ कंसल्टेंट अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ काम करते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। वो आपको जो लेट स्टेज फाउंडर होता है, वो आपको अर्ली स्टेज पे ये बताया था कि सर आपके साथ ये वाले इश्यूज तो हुए, ये मेरे साथ भी हुए, ये टाइम लगेगा 1 साल निकालने के लिए, 2 साल निकालने के लिए, 3 साल निकालने के लिए, और ये टाइम के साथ ही जाएगा, या इसमें आपको कैपिटल की नीड होगी। तो एग्जैक्ट वो लेट फाउंडर आपको अर्ली स्टेज में हेल्प कर देगा। तो मुझे आइडेंटिफाई करके दीजिए, हम लोगों को इसमें शर्माना नहीं है। टेक सपोर्ट हो सकता है, कैपिटल सपोर्ट हो सकता है, एम्प्लॉय हायरिंग हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। अभी आप ये डिसाइड करिए कि मेरी कौन सी टॉप 3 दिक्कतें हैं जो मेरे को X पॉइंट से Y पॉइंट तक जाने में रोक रही हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं अपने बिजनेस में देखता हूँ वो है द क्वालिटी मैन पावर। द मैन पावर इज नॉट बिकॉज इफ आई सी दिस आई एम, अगर मैं आज MBA ढूंढने जाऊंगा सड़क पे, तो आई कैन गेट 1 लाख MBA, 10 लाख हर साल बनते हैं, मैं इतने ढूंढ सकता हूँ, उसमें से भी IIM की भी क्वालिटी बहुत सारी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। बट अगर मुझे आज एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कटरमैन की जरूरत है, राइट, जो उस बोर्ड को काटता है बिल्कुल उस स्टाइल में जिस स्टाइल में फर्नीचर की ऑप्टिमाइजेशन हो, राइट, रॉ मटेरियल कम से कम खर्च हो, उसके लिए मेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आज मेरे कटरमैन की, मेरे पास 3 कटरमैन है, हाँ, और तीनों के तीनों की एज ऑलमोस्ट 50+ है। सो व्हाट इफ जब वो 60-70 जाएंगे, नहीं, जब वो उनकी एज हो जाएगी वो कर ही नहीं सकते, नाउ उनका सक्सेशन नहीं मिल रहा है मुझे कि कौन आएगा उनकी जगह लेगा उस जैसा काम करके और उसके जैसा काम देगा, बिकॉज यहाँ कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो उस टैलेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कर पाए। और मुझे मैं जाऊं, जैसे मुझे आज आईटी के लिए बंदे चाहिए, मैं किसी कॉलेज में जाऊंगा, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, मुझे आईटी के इंजीनियरिंग बंदे मिल जाएंगे क्वालिफाइड, राइट, ओनली द मैटर ऑफ पेमेंट, राइट। मैं तो पेमेंट करने के बाद भी नहीं चुन सकता। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती होगी सर? सपोज करते हैं कटर है, तो इसकी आज मार्केट में कितने रुपए आप देते हो इसको 50 साल में? ये स्टार्ट होता है अगर कोई क्वालिफाइड कटर है जो बिल्कुल ही अगर 0 एक्सपीरियंस है बट टैलेंटेड है, बिकॉज यहाँ एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन अगर टैलेंटेड है तो स्टार्ट विद 35,000 रुपीज पर मंथ प्लस OT ऑफ 200 रुपीज पर आवर। वेरी नाइस। What problem I am facing? I need one good sales co-founder, or you can say also the good sales team. Okay. Because what right now is going on कि मेरे कनेक्शन से मैं प्रॉपर बिजनेस लेके आ रहा हूँ आईटी का, मैं कहीं जाता हूँ या मेरे जितने तो वो खत्म हो जाता है उसका, या मैं बिल्ड करूंगा या मैं बेचूंगा, दोनों चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, दोनों चीजें, क्योंकि आई वाज इनटू टेक since last 5 years, तो मेरे कनेक्शन से सारा का सारा काम आ रहा है, राइट। बट मैंने स्टार्ट भी किया था कि मैं हायर करता हूँ किसी को, आई इनटू लुकिंग इनटू द को-फाउंडर स्टफ आल्सो, द टीम मेंबर स्टफ आल्सो, बट उनका क्या रहता था, वो दे आर लाइक जैसे एक लीड आई यहाँ पर नर्चर नहीं हुई तो उन्होंने किसी और को भेज दी, दे आर नॉट लाइक कि मेरी कंपनी है, सॉल्व करी, हाँ, दे आर नॉट लॉयल, क्योंकि आपके बुक्स पे स्टेक है, उसके बुक्स पे अभी स्टेक नहीं है, इसलिए वो लॉयल्टी। नो, आई वाज आल्सो रेडी टू गिव हिम द स्टेक, बिकॉज़ आई नो स्टेक मैटर्स। तो उसका पैशन फिर नहीं है उस चीज के अराउंड। हाँ, मतलब ये इशू है, ये सबके साथ इशू है। भाई की भी आईटी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज में होता है। और ये मैंने एग्जैक्ट चीज फेस करी है। हम लोग बैंकर्स लॉबी से आते हैं और जब हमने फिनटेक बनाया तो हम बैंकर्स तो हैं, धंधे के बारे में तो जानते हैं, फाइनेंस खेल लेंगे, टेक्नोलॉजी आती नहीं है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, AWS का सर्वर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, किसके अंदर वो फीड करेगा, क्या क्या दिखा देगा। तो ये सारी चीजें जो टेक के, हम लोग को 4 साल लग गए अपना टेक का को-फाउंडर ढूंढते ढूंढते टेक टीम की 18 लोग बनाने में। तो आज मेरी टेक टीम में 18 लोग हैं, टेक को-फाउंडर नहीं है। हाँ, एक टेक मैनेजर है जो जिसको हम नर्सरी से जानते हैं, तो आज वो पोजीशन हैंडल कर रहा है कि वो 18 लोगों को मैनेज कर देता है। तो आपके हिसाब से आप सेम प्रॉब्लम
फेस कर रहे हो कि आप टेक्नोलॉजी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी में तो मुझे काम करना आता है, मगर अपना प्रोडक्ट बेचूं कैसे, ये आईएम वालों को भी दिक्कत आती है कि मैं इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बना देता हूं मगर बनाना अच्छा आता है, बेचना थोड़ी आता है, तो बेचेगा कौन? तो वो वाला इशू ग्राइंडेड, इसका सॉल्यूशन है मगर मेरे पास, मैं आपको दूंगा। That's good. We will I talk. have the same problem. We also have the same ठीक है problem. Anyone else? कि भाई मैं अपनी इंडस्ट्री में नीच काम कर रहा हूं, मैं अपनी इंडस्ट्री का बढ़िया काम करता हूं, मगर मैं या तो फोकस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग पे, बनाने पे, सर्विसेज को क्रिएट करने में, या मैं बेचने में, दोनों जगह जहां मैं जाऊंगा वहां स्केलिंग रुक जाएगी, तो एक अलग बंदा चाहिए होगा मेरे को स्केलिंग के लिए। वेरी नाइस। मुझे अपना फ्लीट खड़ा करना है बहुत ठीक है, बड़ा ओके, ट्रक्स का, तो उसके लिए फाइनेंसेस ठीक है। या आपके हिसाब से सर एक फ्लीट कितने का आता है? आज एक मुझे ट्रक चाहिए हो जिसमें मैं माल इधर से उधर भेज सकूं, उसकी क्या कॉस्टिंग आती है? एक ट्रक की एक ट्रक की एक ट्रक 14-15 लाख से स्टार्ट हो गए और 35-40 लाख रुपए तक जाता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा ऊपर आते हैं। एक फ्लीट में आपकी इच्छा कब ओके हो जाएगी यार इतने ट्रक है मेरे पास तो मेरा काम होता है, अब मैं बढ़िया इन्हीं से स्केल कर लूंगा, अब मुझे ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए? 100 ट्रक